Hello, little learners. How are you all? Hope you all are doing very great. Let's start the new chapter today of class 3rd, which is chapter number 9 about measurements. Okay, we come across many things in our daily life which require measurement. Okay, so students, हम अपनी daily life पे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनको measurement की requirement है. जैसे कि we purchase vegetables and fruits. हम जब मार्केट में जाके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स परचेज करते हैं सो हम उसे किसी सर्टेन वेट के साथ ही परचेज करते हैं. सिमिलरली अ टेलर ऑल्सो टेक्स मेजरमेंट फॉर स्टिचिंग अवर क्लोथ्स. एक टेलर भी हमारे क्लोथ्स को स्टिच करने के लिए हमारी बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज शो दैट मेजरमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. तो ये सारी एक्टिविटीज क्या शो कर रही हैं कि मेजरमेंट जो है हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. In everyday life, we need to measure the height, weight, length, temperature, volume of objects. So, everyday life पे हमें objects के in different measurements को लेना ज़रूरी होता है. And we also need to measure the time also. We have standard units of measurement which have fixed values. Everyone uses the same units of measurement. हम सभी के पास measurement की कुछ standard units होती हैं जो कि हर एक person use करता है and उन सबकी values जो है fixed है. ठीक है? Light traveler faster than the sound. There is an important fact कि light जो है वो sound से ज़्यादा faster travel करती है. Now they have given the standard units. अब different types of measurement के लिए यहाँ पर different standard units given है. Like length के लिए we have meter, for volume we have liter, for the time we have second, for the weight we have kilogram, and for the temperature we have Kelvin. First of all, we are going to discuss about length. The length is measured by using a scale. लेंथ को आप स्केल, मीटर रॉड और मेजरिंग टेप पर यूज करके मेजर कर सकते हैं. एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर. मीटर क्या है? मीटर लेंथ की एक स्टैंडर्ड यूनिट है. स्मॉलर लेंथ, अब जो स्मॉलर लेंथ होती है उनको हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं. एंड वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, अब जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस है उन्हें किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है. 1 मीटर को हम 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं विच इज कॉल्ड सेंटीमीटर्स. एंड ईच सेंटीमीटर, फिर हर एक सेंटीमीटर को 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है विच इज कॉल्ड मिलीमीटर्स. सो 10 millimeters is equals to 1 centimeter, 100 centimeter equals to 1 meter, and 1000 meter equals to 1 kilometer. Then we have also an instrument. एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है that is micrometer. इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ. जो बहुत ज़्यादा स्मॉल लेंथ होती है उन्हें मेजर करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव वेट. अब बात करते हैं वेट की. Weight is measured using a beam balance, spring balance, physical balance and weighing machine. So ये weighing machine है, physical balance है, beam balance है, spring balance है. ये सभी different instruments है जिनको weight measure करने के लिए यूज किया जाता है. Smaller weights, जो small weights होते हैं उनको grams and milligrams measure करते हैं. And the weights which are larger, जो काफी larger weights हैं, they are measured in kilograms and ton. 1000 gram equals to 1 kilogram, 100 kilogram equals to 1 quintal, and 1000 kilogram equals to 1 ton. We use different kinds of balances. अब हम different types of balances या weighing machines को use करते हैं to measure weight, and they have shown you all these balances and weighing machine. Next we have time. So we generally हम watch या clock का use करते हैं to measure the time. Okay, and time को measure किया जाता है in hours, minutes and seconds. These are the standard units of measuring time. 60 seconds equals to 1 minute, 60 minutes equals to 1 hour, and 24 hours equals to 1 day. And they have also shown you the different types of watches and clocks which we use on a daily basis to measure the time. Now the face of a watch or a clock is divided into 12 parts. अब किसी भी clock या watch का जो face होता है स्टूडेंट्स उसको हम 12 parts में डिवाइड करते हैं. And हर एक part 1 hour को measure करता है. And then we also have 3 hands. 3 hands also we have in a watch or a clock. That is the short hand. जो शॉर्ट हैंड होता है वो हमें आवर्स के बारे में बताता है. लॉन्ग हैंड टेल्स मिनट्स. एंड द थिन हैंड, जो थिन हैंड होता है वो हमें सेकंड्स के बारे में बताता है. नॉट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ अ शिप. देन देयर इज अगेन अ यूनिट नोन एज नॉट. इसको यूज किया जाता है एक शिप की स्पीड को मेजर करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर. टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर. ओके, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट पर यूज करते हैं दैट इज नोन एज थर्मामीटर. एंड टेम्परेचर को मेजर किया जाता है इन सेल्सियस, दैट इज सेंटीग्रेड डिग्री, एंड ऑल्सो फ़ारेनहाइट डिग्री. ह्यूमन टेम्परेचर को जनरली हम यूज करते हैं, मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. You can see in this picture, this is a clinical thermometer which is used to measure the human body temperature. And also we have this room thermometer by which you can measure the temperature of a particular
brew. Now the normal temperature of a human body, अब एक human body का जो normal temperature है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. When the clinical thermometer shows a higher reading, it means that the person has fever. और अगर clinical thermometer में इससे ज़्यादा रीडिंग आती है, that means उस particular person को क्या है, सीबत है. टेम्परेचर हेल्प अस टू नो द वेदर एट अ प्लेस. टेम्परेचर के थ्रू आप किसी प्लेस का वेदर को मेजर कर सकते हैं. टेम्परेचर एट अ प्लेस चेंजेस इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट. एंड किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का जो टेम्परेचर है वो मॉर्निंग एंड नाइट टाइम पे चेंज हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट चेंजिंग फैक्टर्स. नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम. सो जनरली वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. ठीक है, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में वॉल्यूम को मेजर किया जाता है. 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर एंड 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 किलोलीटर. स्मॉलर वॉल्यूम्स, अब जो स्मॉलर वॉल्यूम्स हैं उन्हें हम मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं. एंड फॉर मेजरिंग लार्जर वॉल्यूम, और अगर बड़े वॉल्यूम है तो उसके लिए लीटर्स एंड किलोलीटर्स का यूज किया जाता है. द अमाउंट ऑफ रेन दैट फॉल्स इन अ डे इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज. अब एक पर्टिकुलर डे में कितना रेनफॉल हुआ है उस अमाउंट को मेजर करने के लिए वी हैव अगेन एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज रेन गॉज. वी ऑफन मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो ऑफनली हम लोग बॉटल, मिल्क, मेडिसिन एंड ज़्यादातर लिक्विड्स के वॉल्यूम को मेजर करते हैं कुछ मेजरिंग वेसल्स का यूज करके. यू कैन सी दे हैव शोन यू द मेजरिंग वेसल्स हैविंग द डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी measured by using these vessels. So the chapter is completed. I hope it must be very clear to you. Let's meet in the next class with a new chapter, and then take care and thanks to everyone.